What if I tell you that every small thing that you do matters? What if I say every small action that you take matters? Yeah? We'll talk about it. Yes, it does matters. Assume, again, Sunday evening, you are sitting with your friends, you get a call from a very close cousin where your decisions, or you help him in his life to take decisions and take some, advise him on this. So your advice to that person matters a lot. But somehow you are busy with your friends and you decide to ignore. You reply the message, let me call you back later. Now this guy texts you back, I'm in need, can you message me? Again, you said, okay यार चल relax करते हैं बाद में, कोई तो है, कोई नहीं कर लेंगे बात, इतनी क्या बड़ी बात है जिंदगी में. But think, वो बंदा feels disconnected. He feels alone. He feels ignored. अब मैटर में खत्म नहीं होता. He is carrying that because जिस सिचुएशन में था वो बहुत बड़ी लाइफ की सिचुएशन थी. टर्निंग पॉइंट, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टॉक मार्केट में मोटा पैसा लॉस हो गया उसकी प्रॉब्लम हो सकती है. The bigger problem is next morning he carries this entire mood to office. और उस दिन ऑफिस में सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करता है. There's a very important client meeting और ये client 40% revenue देता है कंपनी को. And this meeting is all about renewal of a contract. अब ये बंदा प्रिपेयर्ड नहीं है, इसने पीपीटी नहीं बनाई, तैयारी नहीं की, ऑफिस छोड़ के भाग जाता है because he's too scared. One, because of the situation yesterday, plus उसने तैयारी नहीं की. Now think about it. यहाँ पे क्या होगा? The entire company lose that contract, वो agreement खत्म हो गया, company 40% का revenue खत्म हो गया, and this ends up, a big trouble. That is a big loss for the company. And what it turns out to be, 40% लोगों की जॉब चली गई. Business loss, job loss. So you decided to ignore that one message, and this happened. Cool. Let me tell you another situation. I made this situation as okay. Let me take a step back and say 8.17 people, जिसमें से मैं भी हूँ, आप भी हो. Do we all matter? क्या आपके पड़ोसी को आप मैटर करते हो? अगर मैं कहूँ सिर्फ पड़ोसी को नहीं, घर से निकलते ही आप जिसको देखते हो आप उन सबको मैटर करते हो. मैं कहानी सुनाता हूँ. The Uber ride, मैंने इसका नाम दिया The Uber ride. मेरी तरह का लेजी बंदा था और वो ना हमेशा एयरपोर्ट लेट जाना, घर से ऑफिस के लिए लेट जाना, मीटिंग के लिए लेट जाना. But this one situation is this person has a very very bad day at work. और शाम को उसको फ्लाइट पकड़नी होती है. अब ऑफिस में लेट जाता है, बॉस उसकी नर्व्स पे है. तो होता क्या है कि जो उबर ड्राइवर आता है अगेन फ्लाइट के लिए लेट है, उबर आती है. अब वो बंदा अपना सारा गुस्सा, इस एंटायर फ्रस्ट्रेशन उबर ड्राइवर पे निकालता है कि भैया तू भगा गाड़ी, ड्राइव रैश, क्रॉस ऑल द बैरिकेड्स, क्रॉस ऑल द रेड लाइट्स, जंप ऑल रेड लाइट्स, एंड ही ट्राइज टू मैच अप टू व्हाट and someone like me कहता है यार थोड़े से मैं पैसे भी दे दूंगा, I'll give you double the amount, but please go fast, I can't miss this flight. Unfortunately एक डंपर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है. एक छोटी सी मिस्टेक तो नहीं बोलूंगा, मेरा बिहेवियरल या मेरा टेम्परामेंट का इशू जो मैंने किसी पे निकाला. Now this banda is the lone breadwinner in the family, 2 young kids, young wife, elderly parents and an unmarried sister, जिसके ऊपर बिजनेस का लोन है, घर का लोन है और गाड़ी खरीदने के लिए खेत के लोन पे दिया हुआ है. फॉर्चुनेटली आपकी साइड का एयरबैग खुल जाता है, उसका एयरबैग नहीं खुलता. And this guy is now in coma for God knows how many years. Such a big loss, disability, pain, suffering. That lady, the wife, is now needs to earn bread for the family, needs to pay for the husband's medicines and other stuff, और वो hospitalized है. Think about it. एक behavioral issue, आपका किसी का गुस्सा किसी पे निकालना had such a big ripple effect. किसी की पूरी लाइफ चेंज हो गई.
उसकी daughters, everyone now has to start from beginning. और अभी कुछ नहीं पता उस बंदे का क्या होगा। अगर मैं उस स्टेज पे होगा, मैं अपने आप को जिंदगी भर दोबारा माफ नहीं कर पाता और मेरे को शायद दोबारा खड़े होना और किसी से दोबारा मतलब स्टैंड पर जाके बात करना would have been very difficult. I talk about me myself now. I come from a very small town called Sirsa in Haryana. मेरी सिटी ना वो बाबा राम रहीम जी के लिए फेमस है, शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, है ना? डेरा सच्चा सौदा, है ना? तो so I come from that city और मेरे फादर को छोड़ के उसकी पिछली 7 जनरेशंस में कभी भी किसी ने घर से निकल के एक जॉब नहीं की, मतलब किसी और के लिए जॉब नहीं की, मतलब बिजनेस में भी काम करना, फादर के लिए काम करना का जॉब होता है, पर मेरे डैड ने कभी नहीं। मेरे डैड वाज द फर्स्ट वन एंड देन आई फॉलोड। बट हुआ क्या, आप माय डैड यूज्ड टू वर्क फॉर अ पब्लिक सेक्टर बैंक और इफ यू नो, अगर आपको पता हो 2000 अर्ली 2000 और 90s की जो बैंक्स थे वहां डिजिटलाइजेशन आ रही थी, सब कुछ मैनुअल होता। पहले आप पूरा दिन सारे बही खाते लेजर भरते थे, फिर शाम को कंप्यूटर पे एंट्री चलाते थे। अगर गलती से किसी ने 78,000 को 87,000 कर दिया तो पूरी रात लग जाती थी इसको रिकंसाइल करने में। पैसा बढ़ना भी प्रॉब्लम है, घटना भी प्रॉब्लम है। एनी हाउ माय डैड डिसाइडेड कि भाई मेरा बेटा जॉब नहीं करेगा, ही हैज टू कंटिन्यू द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी द एंटायर जब तक हमारी फैमिली कर रही थी। वो एक डिसीजन था, दिमाग में था। पर मैं आई वाज लाइक ऑलवेज एनीवे जस्ट टू टेल यू, आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी ग्रेट कॉलेज एज यू गाइस और टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं हमेशा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। यू अंडरस्टैंड? आउटस्टैंडिंग नहीं, दोबारा बता रहा हूं, आउटस्टैंडिंग। अब समझ आ गया? वेरी नाइस। तो और मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कॉरेस्पॉन्डेंस से की है। देखिए ना, अगर वो इवनिंग कॉलेज में भी एडमिशन ले रहा हो तो 90% मार्क्स चाहिए, तो फॉर्चुनेट कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कॉरेस्पॉन्डेंस के बच्चों के साथ क्या होता है, जून के बाद अगले 6 महीने कोई काम नहीं होता करने को। आप पढ़ते नहीं हो, सिर्फ आप क्रिकेट खेलते हो। बट मेरा एक फ्रेंड था, इट टुक मी कि चलो यार कुछ करते हैं एंड वी डिसाइडेड टू गिव एन इंटरव्यू और हमारा लकीली एक कॉल सेंटर पे जॉब लग गई। हां, तो पॉइंट ये था कि क्विक मनी मिलेगी, एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर आ जाएगा एंड देन थोड़ा सा घर में जो घर का प्रेशर होता है वो मैं आई वाज वो प्रेशर कुकर इफेक्ट करके कहते हैं कुछ, तो इफेक्ट होता है that will get reduced. But anyhow, that was a turning point in my life. जब मैंने वो जॉब ज्वाइन की, मुझे तब पता लगा द वर्ल्ड इज चेंजिंग। वर्ल्ड क्या चेंज हो रहा था? डेटा हार्ड डिस्क से चेंज होके क्लाउड पे जा रहा था। ट्रांजैक्शंस बैंक के काउंटर पे हटकर क्लाउड पे जा रहे थे। तो आई वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी व्हिच इज अ अमेरिकन अकाउंटिंग प्रोडक्ट कॉल्ड इंटूमेट, तो उसके मैं सपोर्ट सेंटर में था या। तो 3 महीने जैसे जैसे मैंने निकाला पर मेरे में इंटरेस्ट आ गया एंड माय फादर गॉट ट्रांसफर्ड और थोड़ा वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीजें डिले हो गई। लकीली विद इन 12 मंथ्स आई गॉट प्रमोटेड एज अ सुपरवाइजर। तो मैं फ्लोर सुपरवाइजर रहता था फ्लोर पे। 4 घंटे हम लोग सुपरविजन करते थे, 4 लोग सुबह ब्रेक और बाद चाय भी देते थे, सॉरी अबाउट इट बट या। तो ये ऐसे चलती थी हमारी लाइफ। बट आई वाज रियली पैशनेट टू हेल्प पीपल इन माय टीम, really passionate to help customers on the other line, and was mostly a phone and a chat support. So I got this, I was in this UK process supporting Britishers, but there's this one guy, an Indian guy, his name is Mohan Kripal, it's fine to name him out. Now this guy calls up and he was struggling for a data migration where currency was a challenge. And the agent on the call took almost 1 hour with no resolution and the customer was really irate. I get on the call, it takes me 90 seconds to solve the call and to ensure that we are there to support you, and I gave him a free migration. But that one act of support and that one act of change, or that one decision that I took, changed his life and changed my life. Within the next 15 minutes, I had an email in my inbox, come over to my company and work for me in the UK. I was the first person in the last 8 generations in my family to go out of this country. That was a proud moment for me. I never looked back. SaaS, software as a service, I learned with that company. Sales, I learned with that company. And digitalization is what I learned with that company. So that one decision of supporting and one decision of thinking for customers and thinking for others changed my life. And Steve Jobs said this: you can only connect the dots when you look back. So when I look back, software as a service was destined for me. Digital was destined for me because of family with 7 generations into business. I could have entered, but never happened. Cool. Let's talk about
एक और कहानी की बात करते हैं। आई एम श्योर समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत देखो, है ना? बट मैं आपको ये कहानियां दोबारा सुनाऊंगा एंड एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं, है ना? अभिमन्यु learned to be a warrior when he was in his mother's womb. अर्जुन की आदत थी अपनी वाइफ को हर वॉर से आगे एक कहानी सुनाने की। तो एक टिपिकल सिचुएशन में अर्जुन क्या करता है, अपनी वाइफ सुभद्रा को कहानी सुनाता है। सो अभिमन्यु सुभद्रा का और अर्जुन का बेटा है, कहानी सुना रहा होता है कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, और ये बच्चा अंदर बैठा हुआ कहानी सुन रहा है और सुभद्रा को इंटरेस्ट नहीं है और वो बीच में सो जाता है। बट वो एक छोटा सा एक्ट कि वो कहानी सुन रहा है और ये सो जाती है। 16 साल बाद, 16.5 साल बाद महाभारत के युद्ध में या आयुध कुरुक्षेत्र वॉर में बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आया, बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट लेके आया। 16 साल बाद अनफॉर्चुनेटली पांडवों की हालत खराब थी, उनकी 4 अक्षौहिणी सेना खत्म हो चुकी थी, देयर ओनली लेफ्ट 3 अक्षौहिणी सेना, राइट? और अर्जुन को कहीं उठा देते हैं धूल ले जाकर कौरवास, और इधर चक्रव्यूह रख देते हैं। अब कोई ना कोई तो फंसेगा। नाउ दिस किड सेज आई विल टैकल दिस बिकॉज़ मुझे पता है उसके अंदर कैसे घुसना है। एंड द रिमेनिंग 4 अंकल सेज बेटा अगर तू एक बार घुस गया तो तेरे पीछे आ जाएंगे, फिर तो हम देख लेंगे। यू जस्ट गेट अ सेंटर, गेट योर फुट इनटू द डोर, बट फिर अंदर जाके पता लगता है क्या होता है। तो ये तो बच्चा अंदर घुस गया, बट यू नो द अदर्स couldn't, and the sad effect was he was killed. You know, that was the turning point of the Mahabharata युद्ध. अर्जुन and the entire पांडवास बहुत डिफरेंट तरीके से लड़े। उसके बाद 3 अक्षौहिणी सेना को रख के उन्होंने पूरे के पूरे कौरवों को 100 के 100 ऑल को जैसे भी मारा, पूरा ये गेम बना दी। बट थिंक अबाउट इट, दैट स्मॉल एक्ट, अगर उस सुभद्रा नहीं सोई होती, पूरी कहानी सुन ली होगी, शायद वो बच्चा बच गया होगा, और शायद आई डोंट नो उसके बाद क्या होगा, बट दैट्स हाउ इट इज। Yeah, so again for me that small act made a big impact. Consequences changed the entire world and how, you know, that game happened. Okay, last question. Mr. Varghese Surya, I'm sure आप सबको पता होगा। ये लोग, he was a learned gentleman और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे। गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट दिया महाराष्ट्र में जाके, आपको जो इंडिया में वहाँ पे धूप बहुत वेस्ट हो रहा था, सारे गुजरात में वहाँ धूप बहुत वेस्ट हो रहा था। कैन यू वर्क विद दोस पीपल, थोड़ा उसको ठीक करो एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, भैया आपको पब्लिक हेल्थ की जॉब दे दी और आपको फार्मर्स और दूध वालों के साथ काम करना है, राइट? तो दिस कंपनी वाज कॉल्ड गुजरात सहकारी दूध आवास लिमिटेड। तो इन सर का कॉन्ट्रैक्ट था गवर्नमेंट के साथ उसको चेंज करने का, बट इट वाज डैम फ्रस्ट्रेटेड, पॉलिटिक्स एंड यू नो अंडर द टेबल अबव द टेबल, ये सब बहुत चलता था। तो वो डैम फ्रस्ट्रेटेड, तो he decided to quit, but he said I am behind the bond. जिस दिन उनका बॉन्ड खत्म हुआ, he decided to quit, but वहां के फार्मर्स और वहां के लोकल्स ने इनको आके प्लीड किया कि सर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, मिडलमैन हमारा बहुत नुकसान कर रहा है, हमारा सारा मेजर अर्निंग ले जाता है, हाउ कैन यू हेल्प अस? Now this gentleman decided to stay there and start D2C, direct to consumer, and launching new products and removing the middleman and making sure पूरे का पूरा प्रॉफिट उस इंसान को मिल रहा है जिसके का खुद का जानवर है या जिसका खुद का पशु है, जो खुद पूरी अपनी एफर्ट कर रहा है, सुबह 4 बजे उठ रहा है। And what you see is the Amul plant. That is the reality. He brought the milk revolution or the white revolution in the country, and Amul is the largest milk producing company anywhere in the world. That's what this gentleman did. Yeah. So, you know, I'm almost ending my presentation. So the world is unpredictable. Small actions, temperament or behavior, little things, and strong decisions can make and change your families and your friends and the entire world's life, calling it a ripple effect and create ripple effect. You know this gentleman. So I don't know how long to discuss, but thank you. I'll end this with a small statement from Mr. APJ Abdul Kalam. He says, take care of the small things and the big tasks will automatically fall in place. Thank you guys. I really appreciate for listening to me.